Hello everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mahajan Polytechnic College Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of computer networks. But before starting with the subject, I would like to share an important information that is related to Mission Fateh, the campaign run by Punjab government, and which tells us about some precautions that we should take so that we could win against this COVID-19 situation and we should become safe. And that are we should wash our hands frequently. We should wear mask whenever we go out, should use sanitizer, and along with that we should maintain the social distancing rules so that we could come out of this COVID-19 situation, right? So let's move on towards the topic of today, that is subnetting and supernetting. As in the previous lecture we have already discussed about the IP addresses, that how the IP addresses work, what is an IP address, why they are working, why we use them. And then after we have discussed about the IPv4 and IPv6 formats of our IP addresses, that how and why they are used. But there is an important concept of subnetting and supernetting, which we will discuss today. The main benefit of using this is because sometimes, as we all know, that in class C type of addresses, we are confined to 256 number of hosts only. So if in some particular organization, it happens that there are more number of hosts than 256, then what we have to do, one option is that we should take another IP address and then use their hosts. And the another option, second option, is use the supernetting. And one more thing, the second option that could be there is that if there is a network and in an organization we are having, say, different setups or different departments, and in all the departments we need some different LANs, right? In all the LANs there are not more than 50 or 100 PCs or hosts at one LAN, in one network, right? So if we are having only 256 and we need to divide them, we need to divide them into 100 or 50 or in some parts, then it is not possible. So if we have to take another IP addresses and then we need to just shake it off, and we need to just unuse those IP addresses. Some will be utilized and another will be unused. So ये सब प्रॉब्लम्स जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं कि या तो हम एक नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो तब भी हमें अलग से नेटवर्क आईडी लेनी पड़ेगी, अलग से क्लास सी का एड्रेस लेना पड़ेगा, फिर 256 होस्ट जो हैं वो हमें उसके साथ मिलेंगे, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें 50 चाहिए या 100 का पेयर चाहिए, तो वो सारे बाकी के आईपी एड्रेसेस जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। या फिर अगर हमें मोर देन वन जो क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस है वो चाहिए, 256 से ज़्यादा पीसीज हैं हमारे पास, उन्हें हम शेयर करना चाहते हैं, उन्हें हम सबको आईपी एड्रेसेस जो हैं वो देना चाहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस में अगर हमें यूनिक आईपी एड्रेस ना लेना हो और बाहर की दुनिया को ना बताना हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पीसीज यूज कर रहे हैं या कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट यूज कर रहे हैं, या उनको हम डिवाइड कर रहे हैं कौन सी लैब्स में या कौन से डिपार्टमेंट्स में हम कितनी नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, इफ वी डू नॉट नीड टू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, हमें वो यूनिक आईपी एड्रेस बार बार लेने की जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उससे बार बार नेट आईडी लेने की जरूरत नहीं है। तो इस सब को, इन प्रॉब्लम्स को, कि या तो बड़े नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना या छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन करके बड़ा करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबनेटिंग के बारे में। तो सबनेटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। कि अगर हम सबनेटिंग कर रहे हैं तो सब नेटिंग मतलब नेट को सब पार्ट्स में, नेट आईडी को, नेटवर्क को
सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बड़े एक सिंगल नेटवर्क को हम मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी जो आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज है वो कम हो जाएगी। जो अगर ब्रॉडकास्ट के ड्यूरिंग कोई ट्रैफिक मिल रहा है तो सब नेटवर्क में क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पीसीज हैं, जो नंबर ऑफ होस्ट हैं, वो भी लिमिटेड हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से ब्रॉडकास्ट के टाइम पे जब ट्रैफिक की कंजेशन की प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ भी नहीं रहेगी और हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ेगी। और इसे हम जो सबनेट्स हैं वो बहुत सारे केसेस में हम फिजिकली भी बना सकते हैं और जियोग्राफिकल सेपरेशंस के साथ भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसका नंबर है 192.168.10.0/24। तो /24 का क्या मतलब है, जैसे हमने जब क्लास A B C D एड्रेसेस के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि क्लास ए में जो नेट आईडी है वो 8 बिट्स की है। देन क्लास बी में इट इज ऑफ 16 बिट्स, क्लास सी में इट इज ऑफ 24 बिट्स। तो यहाँ पे /24 का मतलब है कि ये क्लास सी एड्रेस है और ये स्लैश नोटेशन जो हम यूज करते हैं इट इज यूज्ड फॉर द प्रीफिक्स। जो हम प्रीफिक्स्ड जो हम लोग नेट आईडी के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका नंबर होता है ये स्लैश नोटेशन के बाद लिखा जाता है। तो 24 का मतलब है ये क्लास सी टाइप ऑफ एड्रेस है। 24 से भी पता चल सकता है, लेकिन अगर स्लैश नोटेशन ना हो तो 192 जो एड्रेस है उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये क्लास सी टाइप ऑफ एड्रेस है, क्योंकि जो क्लास सी का एड्रेस है दैट रेंजेस फ्रॉम 192 टू 200 समथिंग, राइट, 211 I guess. Then after यहाँ पे अगर हम देखें इधर इस साइड पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे लार्ज नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 64 है, 32 है, 96 है, तो मतलब उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारा 256 का नेटवर्क था उसे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि वाई आर द सबनेट्स यूज्ड फॉर, तो उनको यूज क्यों करते हैं। ये पहले ही हम लोग बात शेयर कर चुके हैं कि जो सबनेट्स हैं वो नेटवर्क कंजेशन जो है उसको कम करते हैं, ट्रैफिक फ्लोइंग को कम करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर किसी नेटवर्क में ज्यादा है तो, राइट। देन सेपरेटिंग आउट स्मॉल पार्ट्स, अगर हमने जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम छोटे पार्ट्स में अगर हम लोग काम करना चाहते हैं तो वहां पे एक लैन नेटवर्क के अंदर हमें 256 पीसीज की जरूरत नहीं है जो क्लास सी एड्रेस हमें दे रहा है। तो हम उसी को रादर दैन की अलग से आप कोई आईपी एड्रेस ले, यूनिक आईपी एड्रेस, फिर उसको आगे डिवाइड करें और आईपी एड्रेसेस को वेस्ट करें, तो उससे बेटर है हम अपने ही एक नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क्स जो हैं वो बना लें। तो इससे एफिशिएंटली हम आईपी एड्रेसेस को एलोकेट भी कर पाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो अनयूज रह रहे थे उनको भी यूटिलाइज कर पाते हैं। और जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑफिस ने, पर्टिकुलर टीम ने या किसी बिजनेस के लिए जो बनाया गया है तो उसे भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग इस चीज को वर्क करवाते हैं। सबनेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी या नेटवर्क प्रीफिक्स है और यहाँ पे है होस्ट नंबर। जैसे हमारा आईपी एड्रेस होता है तो उसमें पहले नेट आईडी होती है, दूसरी होस्ट आईडी होती है। तो यहाँ पे भी नेट आईडी है और होस्ट आईडी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमें सब नेटवर्क बनाना है तो इसका मतलब नंबर ऑफ होस्ट एक नेटवर्क में हमें कम करने हैं। तो हमें पता है कि जब हम होस्ट नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम लेते हैं कि अगर होस्ट आईडी 8 बिट्स की है तो इसका मतलब 2⁸8 यानी कि 256 होस्ट जो हैं वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम 2⁸8 ले रहे हैं तो हमें अब 256 से कम चाहिए सॉरी 256 से कम होस्ट चाहिए एक नेटवर्क के अंदर। तो हम क्या करेंगे, होस्ट नंबर को कम कर देंगे, होस्ट आईडी को कम कर देंगे और उस होस्ट आईडी को कम करके हम लास्ट में यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है हमारी, जो मैक्सिमम बिट होती है D7 जिसको बोलते हैं हम, वो वाली बिट की जगह पे, राइट, जो लोअर वाली बिट्स हैं वो एज इट इज रहती हैं और जो हायर वाली बिट्स हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन आप अपने नेटवर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो उतनी बिट्स को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे सबनेट नंबर की तरह या सबनेट मास्क की तरह उसे यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब सबनेट नंबर यहाँ पे कैसे यूज करते हैं हम,
फॉर एग्जाम्पल हमें अपने 256 वाले नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 128 एक में और 128 दूसरे में। हमें ऐसे चाहिए लैन नेटवर्क। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो होस्ट आईडी का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, सबसे हाईएस्ट लेवल वाला बिट है, उससे हम क्या कर देंगे, 0 और 1, उसे हम सबनेट नंबर बना देंगे। तो उसे हम सबनेट नंबर अगर बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, या तो वो वैल्यू 0 होगी या उसकी वैल्यू होगी 1। अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो होस्ट आईडी कितनी रह गई हमारे पास, होस्ट नंबर रह गए 7, होस्ट आईडी रहेगी 7 बिट्स की। तो 7 बिट्स की रही तो पहली बार में भी हमारे पास 128 बिट्स आ जाएंगी, 128 होस्ट आ जाएंगे, और दूसरी बार में भी हमारे पास 128 जो है वो बिट्स आ जाएंगी। यहाँ पे लेट मी राइट एंड देन टेल यू कि अगर हमने जो सबनेट आईडी है हमारी, जो हमारा मास्क है जो हम यूज कर रहे हैं सबनेटिंग के लिए, फॉर एग्जांपल कि हमने जो बिट यूज करी वो थी ऑल जीरोज, 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये था हमारा होस्ट नंबर, पहले होस्ट आईडी, ये पहले वाली होस्ट आईडी थी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इसका जो ये फर्स्ट बिट है ये वाली, इसे हमने सबनेट नंबर बना लिया। तो अगर हमने इसे सबनेट नंबर बना लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहली बिट को सिर्फ हमने चेंज किया है, तो ये बन जाएगा दूसरे टाइम पे, ये क्या बन जाएंगी, ये दोनों बिट्स जो हैं 0 बिट और 1 बिट, ये क्या है, हमारा सबनेट नंबर है। तो मतलब जो पहला एड्रेस है वो .0 से स्टार्ट हो रहा है, जो दूसरा एड्रेस है वो .128 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसे डेसिबल्स में कन्वर्ट करो तो इट विल बी .128। तो अब मैं दूसरी बिट की बात करती हूँ। अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 बिट्स का सबनेट ले रही हूँ, अगर 2 बिट्स का सबनेट, तो 2 बिट्स के सबनेट से हम 4 नेटवर्क्स बना सकते हैं। कैसे बनेंगे 4 नेटवर्क्स, 0 0 और उसके आगे 6 जीरोस, फिर 0 1 6 जीरोस, फिर 1 0 6 जीरोस, फिर 1 1 6 जीरोस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो आपका एड्रेस है वो .0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी, इक्वल टू मतलब जो भी आपका एड्रेस था, से 192.56.221.0 फॉर एग्जाम्पल, ये था आपका नेटवर्क, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 192.56.21. ये कितना हो गया, कितने से स्टार्ट हो रहा है, ये 64 से। कैसे, ये देखो 0 सॉरी 1 2 4 8 16 32 64। जैसे हम 8 4 2 1 करते हैं, तो अगर हम लोग इसको डेसिबल में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम 64, राइट। तो अब हम दोबारा से इसके साथ कर रहे हैं, राइट। तो इक्वल टू 192.56.21 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 128। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 192.56.21.128 में 64 ऐड करो, कितने आए, इट बिकम्स 192, राइट। तो अब ये क्या हुआ कि हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने सिर्फ होस्ट आईडी की 2 बिट्स को यूज किया। जो कौन सी वाली 2 बिट्स थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली, सिर्फ 2 बिट्स ली, और 2 बिट्स के साथ हमारा जो सिंपल छोटा सा नेटवर्क था, जो यार बड़ा सा नेटवर्क था, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। बड़े बड़े 4 हिस्सों में वो नेटवर्क जो था वो डिवाइड हो गया। तो 4 हिस्सों में क्यों हुआ, क्योंकि 2 के साथ 2 नंबर ऑफ बिट्स के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास 2 नंबर ऑफ बिट्स के साथ हमारा ये नेटवर्क 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2⁻² इज इक्वल्स टू 4। अगर हम 1 बिट लेंगे तो 2 नेटवर्क्स में 2 पार्ट्स में आपका नेटवर्क जो है वो डिवाइड होगा। अगर हम 2 बिट्स लेंगे तो 4 में डिवाइड होगा। अगर हम 3 बिट्स लेंगे तो 8 में डिवाइड होगा। मतलब आप अपने नेटवर्क को सबनेट आईडी को यूज करके कितने भी
पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए। देखो अगर आप सबनेट आईडी लेते हो 2 बिट्स की, तो यहाँ पे क्या है 6 बिट्स बचती हैं फॉर होस्ट आईडी। तो 6 बिट्स बचती है मतलब 2⁶, तो 2⁶ कितना हुआ 64। तो 64 के हमारे पास 4 नेटवर्क्स आ गए। अगर आप 3 बिट्स लेते हो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने 3 बिट्स यूज करी, तो 3 बिट्स में आपके पास 8 नेटवर्क्स बन जाएंगे। यहाँ पे बन जाएगा 001, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये 010, यहाँ पे बन जाएगा ये 011। तो इस तरह से आपका जो है वो यहाँ पे ये सारा चेंज हो जाएगा। ये जो भी ये तुम्हारे होस्ट आईडीज हैं ये चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? क्योंकि अब हमारे पास ये बिट्स कितनी बची 5। तो अगर हमारे पास होस्ट आईडी में 5 बिट्स हैं तो 2⁵ मतलब 32। तो मतलब हमने 32 के हमने 8 नेटवर्क्स बना लिए। तो कभी भी आपका जो नेटवर्क है वो कभी भी आपका जो नेटवर्क है वो ऑड नंबर्स में नहीं डिवाइड होगा। वो जब भी डिवाइड होगा हमेशा इवन नंबर्स में डिवाइड होगा, क्योंकि वो 2⁻⁴ की फॉर्म में आएगा, राइट। तो दिस वाज अबाउट द सबनेटिंग। तो इस तरह से हम लोग सबनेटिंग जो है उसको परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबनेट्स जो हैं दे कैन बी फ्रीली असाइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको फ्रीली असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज को नेट आईडी को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो सबनेट आईडी है वो एक्चुअली नेट आईडी में मर्ज हो जाती है, लेकिन उसको हम ले रहे हैं होस्ट नंबर से ले रहे हैं, तो इसलिए हमें किसी को भी ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इंटरनली जो सबनेट्स हैं वो अलग नेटवर्क जो है वो शो होते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई इस नेटवर्क को देखता है तो उसे वो सिंगल नेटवर्क की तरह ही नजर आते हैं, क्योंकि उसका पहला एड्रेस जो है वो वही होता है जो नेट आईडी का पहला एड्रेस होगा 0.0। ओके, देन सबनेट स्ट्रक्चर जो है इट इज नॉट विजिबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम क्लासेस की बात करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो हम किसी में भी सबनेटिंग यूज कर सकते हैं, बट हम मोस्टली क्लास सी यूज करते हैं, तो इसलिए सबनेटिंग भी मैंने उसी चीज की समझाई है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम जब क्लासेस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क बेसिकली क्या बताता है हमें, नेट आईडी और होस्ट आईडी में डिफरेंस बताता है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप क्लास ए की बात कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो क्या होगा 255.0.0.0। तो इसका मतलब क्या है, 255 का मतलब ऑल वंस। तो सबनेट मास्क हम बेसिकली यूज करते हैं टू कैलकुलेट, टू चेक द नेटवर्क आईडी। उसका नंबर क्या है नेटवर्क आईडी का। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एड्रेस है से 10.58.34.0, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 0.0, चलो कुछ भी है, इसको रहने दो, 58 ही रहने देते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लास ए है तो ये इसके साथ हम लोग क्या करेंगे 255.0.0.0। तो अगर हमने ये इसके साथ मास्क लगा दिया, मास्क लगाने का मतलब है इन दोनों को हम करेंगे एंड ऑपरेशन, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इनको बिट्स में कन्वर्ट करके हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड वी ऑल नो कि एंड ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन होती है, और जब भी हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आएगा। जब हम 255 यानी कि ऑल वंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो अगर हम अब मैंने ये सबनेट मास्क क्लास ए में लगा दिया, तो अब मुझे इसके आंसर में, इसकी आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा 10.0.0.0। तो इसका मतलब ये है मेरी नेटवर्क आईडी, ये है मेरी नेट आईडी, और ये जो बाकी था 58.34.0 ये मेरे होस्ट नंबर्स थे, राइट। तो इस तरह से हमें जो है वो क्लियर होती है कि किस तरह से हम सबनेट मास्क को यूज करके हम लोग किस तरह से अपने नेटवर्क जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेटवर्क की आईडी क्या है। अब यहाँ पे हमने सबनेटिंग यूज नहीं की है, ये डिफॉल्ट मास्क हैं, यहाँ पे सबनेटिंग नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास अगर हम, चलो बी में भी ऐसे ही होगा। अगर हम सी की बात करें तो उसमें मान लो मैंने लगाया 192.45.62 से 0 और से 32 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें जो मेरा सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा 255.255.255.0। ये क्यों?
क्योंकि क्लास ए में जो नेट आईडी होती है वो 8 बिट्स की होती है, तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो 8 बिट्स का होगा, 255.0 ऑल जीरोस। क्लास बी में होती है वो 16 बिट्स की, तो 2 बार 255 लगेगा, उसके बाद 2 बार 0 लगेगा। क्लास सी की जो नेट आईडी होती है वो होती है 3 बाइट्स की, राइट। तो उसमें जो लगेगा आपका इट विल बी लाइक दिस ओनली, तो 3 टाइम्स 255 लगेगा। तो आप इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, क्लास ए में एक बार 255, बी में 2 बार, सी में 3 बार, राइट। तो इसकी अब नेट आईडी क्या हुई 0.62.0, ये हुई उसकी नेट आईडी। और ये 32 जो है वो उसका होस्ट नंबर है, कि इस आईडी का कौन सा नंबर वाला पीसी यूज जो कर रहा है। जो आपका पीसी होगा वो तो कोई एक होस्ट नंबर यूज करेगा ना, वो नेट आईडी थोड़ी ना यूज करेगा। तो ये हो गई आपकी नेट आईडी, ये हो गया आपका सबनेट डिफॉल्ट मास्क, और ये हो गई आपका होस्ट नंबर, होस्ट का नंबर, कि जो आप पीसी यूज कर रहे हो वो पीसी कौन से नंबर वाला आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है, राइट। तो दिस वाज अबाउट द सबनेट मास्क इन वेरी डिटेल आई हैव टोल्ड यू। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें भी यही चीज दिखाई गई है कि अगर आपका आईपी एड्रेस है, कोई भी आईपी एड्रेस है, ये आपका नेटवर्क नंबर है, ये आपका होस्ट नंबर है, ये आईपी एड्रेस है, ये आपका डिफॉल्ट, अब ये डिफॉल्ट मास्क नहीं है, डिफॉल्ट मास्क है 255.255.255.0। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने आईपी एड्रेस यूज किया तो यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 बिट्स को यूज कर रहे हैं एज अ सबनेट नंबर, राइट। तो अब इस दो बिट्स को जब हम सबनेट नंबर की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इनको अगर प्लस करोगे तो 128 प्लस अगर हम 64 करते हैं तो ये क्या बनता है 192 बनता है, राइट। तो 192 जो बन गया वो इसका अब सबनेट मास्क बन गया। क्यों सबनेट मास्क बना, जैसे पहले बताया था कि ये जो आपका बिट है, ये वाली जो आपकी बिट्स हैं, इनमें से आपने पहले 2 नंबर्स को यूज कर लिया, ले लिया एज अ सबनेट नंबर, राइट। तो अगर वो सबनेट नंबर हमने ले लिया तो अब क्या होगा कि ये जो होस्ट आईडी वाला नंबर है, वो जो पहले 0 लिख रहे थे हम यहाँ पे सबनेट मास्क की जगह पे, तो अब वहां पे यहाँ पे 2 वंस आ जाएंगे। तो 2 वंस आ जाएंगे, तो जब हम इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे, 1 एंड ऑल 6 zeros बिहाइंड दैट, तो वो चीज जो है वो डेसिबल में उसको बोलते हैं हम 192। तो ये बन गया सबनेट मास्क। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी नेटवर्क आईडी जो है वो हो गई आपकी 0.64, जो सेकंड नेटवर्क जो स्टार्ट हो रहा है, पहला नेटवर्क तो 0 से स्टार्ट होगा, जो दूसरा नेटवर्क है वो 64 से स्टार्ट होगा। तो इसमें जो फर्स्ट होस्ट होगा वो .1 से स्टार्ट होगा, जो लास्ट होस्ट होगा वो 126 होगा, ठीक है। और अगर हमने ब्रॉडकास्ट करना है तो ब्रॉडकास्ट के लिए ये फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है, 127 वाला एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट द सबनेट मास्क। तो यहाँ पे भी वो चीज बताई हुई है, देखिए जैसे मैंने आपको अभी लिख के बताया कि अगर हम 2 बिट्स ले रहे हैं, 2 सबनेट्स ले रहे हैं, तो हमारे पास 2 सबनेट्स आएंगे और टोटल 64 में से -262 होस्ट जो हैं वो हम यूज करेंगे, क्योंकि एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए है और एक अपना होस्ट का नंबर है 0 वाला। तो 2 होस्ट हमारे हमेशा माइनस हो जाएंगे, तो उससे 2 नंबर कम जो है वो हमें हमेशा मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 बिट्स लेते हैं तो हमारे पास 6 सबनेट्स जो हैं वो बन जाएंगे, राइट। और 30 नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे 32 की जगह, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 4 बिट्स लेते हैं तो 16 में से -2 14 नंबर ऑफ जो सबनेट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग 5 बिट्स लेते हैं तो 30, अगर हम इतने लेते हैं 6 बिट्स लेते हैं एज अ सबनेट मास्क तो हमारे 62 आ जाएंगे, राइट। तो दिस इज अबाउट द सबनेटिंग। देन यहाँ पे भी उसी तरीके से इसी एग्जाम्पल को बताया गया है कि नंबर ऑफ होस्ट जो है वो किस तरह से हमने 60 होस्ट लेने हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, 50 लेने हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, 40 लेने हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, कौन सा अनयूज्ड है, किस तरह से कौन यूज हो रहा है। देन आफ्टर इज योर IPv4 प्रीफिक्स। तो यहाँ पे एक चीज है जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्रीफिक्स जो है वो कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी जो टोटल एड्रेस स्पेस है वो है
24 बिट्स की। वाई 24 यहाँ पे स्लैश नोटेशन के साथ हमने यहाँ पर 24 लगाया है। क्यों 24 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं? इट इज बिकॉज कि यहाँ पे जो हमारी नेट आईडी है वो 24 बिट्स की है। जैसे हम क्लास सी एड्रेसेस की बात करते हैं तो वो 24 बिट्स की नेट आईडी होती है, राइट? तो ये 256 एड्रेसेस हो गए फ्रॉम से 0 1 2 3 सो ऑन अप टू 255, तो टोटल हो गए 256 एड्रेसेस। अगर हम इन्हें सबनेटिंग में डिवाइड करते हैं और सिर्फ 1 बिट को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी नेट आईडी है उसमें एक बिट ऐड हो गई और होस्ट आईडी में एक बिट कम हो गई। तो होस्ट हो गए हमारे 128 और हमारी जो नेट आईडी है वो बन गई 25 बिट्स की। तो इसका मतलब पहला जो नेटवर्क होगा, पहला जो सबनेट होगा, उसके अंदर हमारे पास जो बिट्स आ रही हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 127 एंड जो दूसरी आ रही हैं दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 128 एंड रीचेस अप टू 255। जो 127 वाला है वो रिजर्व्ड है, 0 वाला जो है वो रिजर्व्ड है। हर एक नेटवर्क के अंदर आपका ये दो जो नेटवर्क्स होंगे वो रिजर्व्ड रहेंगे और 1 से लेके 126 और यहाँ से 129 से लेके 254 वाले होस्ट जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? सो नाउ द एडवांटेजेस ऑफ सबनेटिंग. What are the advantages of subnetting is that it organizes your network, it reduces the congestion, it prevents the unused IP addresses. The next point is the supernetting is exactly the opposite to that of your subnetting. जैसे हम सबनेटिंग में क्या करते हैं कि बड़े नेटवर्क को, लार्ज नेटवर्क को हम स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल एरियाज में डिवाइड करते हैं। सुपर नेटिंग में अगर हमें फॉर एग्जांपल 256 की जगह हमें 500 जो पीसीज हैं वो यूज करने हैं या 1000 होस्ट जो हैं वो यूज करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम सबनेटिंग में क्या ले रहे थे, होस्ट आईडी की थोड़ी सी बिट्स को नेट आईडी में ऐड कर रहे थे और उससे हमारे सब नेटवर्क्स बन रहे थे। तो अब अगर हम नेट आईडी की थोड़ी सी बिट्स को होस्ट आईडी में ऐड अप कर देंगे तो हमारे सुपर नेट्स बन जाएंगे। यानी कि अगर हम होस्ट आईडी 8 की जगह, होस्ट आईडी अगर हमारी बन जाए 9, तो 2⁸ की जगह 2⁹ यानी कि 512 नंबर ऑफ पीसीज हम यूज कर पाएंगे। तो वही नेटवर्क जो है उसको हम एक सुपर नेटवर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट? तो हम बोरो करते हैं इसमें बिट्स नेटवर्क पोर्शन में से, राइट? तो इसमें अगर लैन नेटवर्क में वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, राइट? तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, /24 नोटेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अगर हम इसे बनाना चाहते हैं हमारा सुपर नेटवर्क, तो यहाँ पे हमने स्लैश नोटेशन क्या यूज की, 22, यानी कि नेटवर्क आईडी में से 2 बिट्स हमने होस्ट आईडी में डाल दी, तो हम 1024 जो पीसीज हैं या जितने होस्ट हैं उन्हें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं या स्लैश नोटेशन की बात करते हैं, तो अगर हम सबनेटिंग करेंगे तो स्लैश नोटेशन का नंबर इंक्रीज होगा, अगर हम सुपर नेटिंग करेंगे तो स्लैश नोटेशन का नंबर जो है वो रिड्यूस होगा। तो इस एग्जांपल से भी आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले सारे 5 की 5 बिट्स हैं वो सारी कॉमन है और इसके बाद ये सारी बिट्स जो है वो चेंज हो रही हैं। तो दैट इज वाई अगर हमने सुपर नेट बनाना है तो हम इस एड्रेस को लेकर और इसकी जो बिट्स हैं उसे 21 स्लैश नोटेशन के साथ यूज करके हम इसे अपना सुपर नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं 192.168.96.0/21 का मतलब कि ये 3 जीरोस, मतलब हमारी 3 bits of the network ID they have been added into the host। तो host की जो पहले 8 थी वो अब 3 ऐड करके कितनी बन गई, 11। तो 2⁻11 मतलब 2048 जो होस्ट है, नंबर ऑफ होस्ट हैं, वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी इस एग्जांपल में भी यही चीज बताई गई है, राइट? देन आफ्टर इज सबनेटिंग वर्सेस सुपरनेटिंग। तो सबनेटिंग में हम डिवाइड करते हैं नेटवर्क को 2 और मोर पार्ट्स में, और यहाँ पे हम सिंगल नेटवर्क को 2 और मोर नेटवर्क्स को सिंगल लार्ज नेटवर्क में कंबाइन करते हैं। यहाँ पे भी वो स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड हो रहा है उसको लार्ज नेटवर्क्स में। यहाँ पे डिप्लीशन को रिड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई और रूटिंग प्रोसेस को फास्ट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। So this was all for today's lecture. Thank you so much. And this was all about subnetting and supernetting. I hope you all are clear. If still there will be any doubts, we will be taking them into our live sessions. Okay. Thank you. Take care.